Hello students, welcome everyone. So we are going to continue with the chapter Control and Coordination. In this part, which is part 4, we are going to start with neurons. So in the previous part, I discussed about how the message is transferred from the receptor to the central nervous system, and then there onwards it goes to the effectors, right? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस एक एनर्जी है, उस एनर्जी को रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर्स, एंड इमीडिएटली उस केमिकल एनर्जी को जो एनर्जी स्टिमुलस से जो मिल रहा है उसको इमीडिएटली वो कन्वर्ट कर देता है केमिकल रिएक्शन में. ओके. एंड केमिकल रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिसको नर्व इम्पल्स भी बोला जाता है. ओके. सो इफ़ आई से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड नर्व इम्पल्स इट मीन्स द सेम थिंग. एंड उस नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या एक मैसेज होता है, वो नर्व इम्पल्स को कैरी कौन करता है, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो वेन एवर आई टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज़ ऑलवेज brain and spinal cord. So they work on the message, they interpret, they process it, and ultimately they again make a message in the form of electrical impulse only, which is carried to the effectors by again set of neurons. And finally क्या होता है, the effectors respond towards a stimulus. Okay, so that is the scenario. वो मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया था. अब जरा इसको स्टडी करते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट coordinating activities in humans, so when we talk about coordinating activities in humans, we have two systems. So we have the nervous system as well as we have the endocrine system. The endocrine system is also known as the hormonal system. Okay, so we will be studying that thing later on. So let us understand what is a human nervous system. So whenever I say human nervous system, always keep in mind I am talking about a combination of brain and spinal cord. Okay, so इसको central nervous system भी बोला जाता है. So the function of nervous system is to coordinate the activities. और main functions की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या function है, to receive the information from the surroundings. जो भी stimulus के through information आ रहा है उसको receive करना, उसको प्रोसेस करना और उसको इंटरप्रेट करना, एंड फाइनली रिस्पॉन्ड करना टुवर्ड्स अ स्टिमुलस. दैट इज़ व्हाट द एंटायर सिस्टम ऑफ नर्व सिस्टम डज. ओके, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दैट इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 3 बेसिक फंक्शंस है: टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, processing and interpreting it, and finally creating a response towards that stimulus. Okay, now let us come to the topic of neurons. This is nothing new to you. Yes, you have been doing this in your 9th class, in your 8th class and all. तो जरा देखते हैं कि न्यूरॉन्स होता क्या है. न्यूरॉन्स का दूसरा नाम है नर्व सेल. ओके, so it is the structural and functional unit of nervous system. Structural cue because it has a specific structure, and functional cue it has a specific function of carrying the electrical impulses. Got it? And when we talk about the nervous system is made up of special cells called the nerve cells or the neurons. तो entire nervous system चल क्यों पा रहा है? Because of the neurons only. अगर हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स नहीं होता तो शायद कोई भी coordinating activities possible ही नहीं होता, because the entire message in the body is carried by the neurons. And you know that neurons are the largest cell in the body as well. So the main function of neuron is to carry message in the form of electrical impulse, also known as the nerve impulse. So keep in mind, जो सबसे main function है न्यूरॉन का, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, to carry the information or rather the message in the form of electrical impulse or nerve impulse. So keep in mind the basic definition of neuron. It is a structural and functional unit of nervous system. Moreover, it is the largest cell in the body as well, right? And at the same time, the main function of neuron is to carry the electrical impulse. It's to carry the message from receptor to central nervous system, and then from central nervous system to the effectors. Okay, now we will be defining one by one what is it all about. बट उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक न्यूरॉन है क्या. एक न्यूरॉन तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. बट what does it contain? A neuron has 3 basic components. One is the cell body, another one is the axon, and the third one is dendrite. The axon and the dendrite are the set of fibers that originate from the cell body. अगर आप ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका सेल बॉडी दिखा रखा है मैंने, राइट.
सेल बॉडी से बहुत सारे छोटे फाइबर्स और एक लंबा फाइबर ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये वाला छोटा फाइबर, इन छोटे फाइबर्स को बोलते हैं डेंड्राइट, द स्मॉल फाइबर्स। लेकिन जो सेल बॉडी से जो बड़ा फाइबर जा रहा है, ठीक है, दैट लंबा फाइबर इज नोन एज axon. Okay, and this axon is having a protective cover because since it is carrying a message in the form of electrical impulse, तो वो कहीं लॉस ना हो जाए, इसलिए नेचर ने इसको एक प्रोटेक्टिव इंसुलेशन कवर दे रखा है। उस प्रोटेक्टिव इंसुलेशन कवर का नाम है माइलिन शीथ, ओके, और शेथ, विच एवर वे यू कॉल, राइट। एंड द एंड ऑफ एक्सॉन यू हैव द नर्व एंडिंग देयर, राइट। सो जब भी हम लोग एक न्यूरॉन बनाते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और उस सेल बॉडी से ओरिजिनेट होने वाले छोटे फाइबर्स और लंबे फाइबर्स हैं। छोटे फाइबर्स को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, वेर एज लंबे फाइबर्स को हम एक्सॉन बोलते हैं, ओके। एंड मोर ओवर व्हेन यू टॉक अबाउट द एंडिंग ऑफ एक्सॉन, वी हैव द नर्व एंडिंग देयर, and the axon is covered by a protective insulating cover which is known as myelin sheath. Okay, so this is a very important diagram. ध्यान से देखना है आपको, साइटोप्लाज्म मार्क करना है, न्यूक्लियस मार्क करना है, डेंड्राइट मार्क करना है और एक्सॉन मार्क करना है. नाउ let's move one by one. What about all the components, what they say? So cell body, the cell body, it consists of cytoplasm and nucleus, as you can see. Okay, moreover, you know that a number of long and thin fibers, they are stretching out from the cell body of a neuron. बहुत सारे लॉन्ग फाइबर्स और शॉर्ट फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे सेल बॉडी से, ठीक है। अब उनमें हम दो डिविजन्स देखेंगे. एक्सॉन जो है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, ओके, एंड इट हैज़ अ स्पेसिफिक कवरिंग, insulating and protective cover known as myelin sheath. At the same time, when you talk about dendrite, it is the shortest fiber or the shorter fiber on the cell body of a neuron. Actually, this is the dendrite is the thing which is actually connected with the receptor. Receptor से जो electrical impulse जो लेकर आता है वो कोई और नहीं है, वो dendrite ही है. So we can say that it is connected with receptors or sense organs for that matter. Okay, it receives electrical impulse from that side. So I have written two specific note. One, axon carry the electrical impulse. What is the main function of axon? जो भी electrical impulse न्यूरॉन के अंदर आ रहा है, वो axon उस electrical impulse को carry करके ले जाता है दूसरे न्यूरॉन तक. Similarly, dendrite का काम क्या है? Dendrite, they pick up the nerve impulse or the electrical impulse from the receptors. Okay. What is the main function of dendrite? It is to pick up, it is to get the electrical impulse from receptors. And what is the main function of axon? It is to carry the electrical impulse from one neuron to next neuron. And you know that there are millions of neurons in our body. इसके बिना काम नहीं हो पाएगा, because human body में there are so many messages which are happening at the same time, which are carried at the same time. So this is specific. अब हम लोग जाते हैं तीन अलग टाइप के न्यूरॉन्स में. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया. हमने शुरू किया था नर्वस सिस्टम, उसका बेसिक काम है रिसीव करना, प्रोसेस और इंटरप्रेट करना और फाइनली रिस्पॉन्ड करना. फिर हमने देखा कि जो मेन यूनिट है नर्वस सिस्टम का वो कौन है? न्यूरॉन, बिकॉज न्यूरॉन है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी कराता है. फिर हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा. इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट. जो लंबा फाइबर है वो है एक्सॉन और जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो है डेंड्राइट, विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी. And at the same time you see that there is a protective cover so that the message is not lost. Okay, so that is known as myelin sheath, right? तो अब हम करते हैं तीन अलग टाइप के न्यूरॉन्स. तो ये स्पेसिफिक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में बताया था कि बहुत सारे मैसेज साइमल्टेनियसली जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक ना क्रिएट हो, इसलिए सबका अलग अलग पाथ है. तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ न्यूरॉन है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स. नाम से ही समझ लेना, सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब क्या है? दे कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेजेस जा रहे हैं वो किस न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहे हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहे हैं. मोर ओवर व्हेन आई टॉक अबाउट मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स क्या है? दे कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल सेल, जो कि हैं एफेक्टर्स. ओके, हैव यू गॉट इट? तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? इट कैरीज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ओके, इट कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर to the central nervous system, that is brain and spinal cord. But on the other hand,
when we talk about motor neurons, it carry electrical impulse from central nervous system to muscle cells, that means the effectors. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मैसेज अपने इंटरप्रेट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस करते हैं. उसके बाद जो मैसेज बनता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जो जा रहा है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है. ओके, एंड फाइनली आपको एक नया सिस्टम मिलेगा, एक नया न्यूरॉन मिलेगा जिसका नाम है रिले न्यूरॉन्स. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव, आई मीन probably you must have understood what is relay meaning. You know, आपने relay race तो देखा होगा, when you connect the race. Similarly, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज तो लेके जा रहे हैं, बट वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं जा पा रहे, यानी कि ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं जा पा रहे, वो सिर्फ बाहर तक मैसेज डिलीवर करते हैं. तो ऐसा कौन सा न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चल रहा है? वो है आपका रिले न्यूरॉन. तो इट बेसिकली अकर इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट सर्व्स एज द लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स. मतलब सेंसरी न्यूरॉन से आने वाले मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रैवल कराने के लिए किसका हेल्प लेते हैं हम लोग? रिले न्यूरॉन्स का. और सिमिलरली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने जो मैसेज डेवलप किया है, रिस्पॉन्स वाला जो मैसेज डेवलप किया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो रिले न्यूरॉन किस तक पहुंचाता है? मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है. सो एक तरीके से आप देखा जाए तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को बीच से कनेक्ट कौन कर रहा है? रिले न्यूरॉन. और दिमाग में आप ये रखेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो जितने भी मैसेजेस ट्रैवल हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है? रिले न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट द 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स वी हैव. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड. Now there is a specific section you need to understand, that is the concept of synapse. Okay, अब जब हमने न्यूरॉन्स को बहुत बारीकी से देखा, जब बहुत ही अच्छे से हम लोग रिसर्च कर रहे थे न्यूरॉन्स को, then we observe one thing, that the neurons, you know, they do not join completely. Now that is the first thing we got to understand, कि ये जो न्यूरॉन है वो एक दूसरे को कभी भी completely join नहीं करते. There always exists a gap between two neurons. नाउ देर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट. आपने सुना होगा दो चीज़ों को जोड़ने के लिए उनके बीच का गैप हटाना पड़ता है, बट यहाँ पे ह्यूमन सिस्टम में आप देखते हो दो न्यूरॉन के बीच में देर इज़ ऑलवेज अ गैप, और ये गैप इनफैक्ट दो न्यूरॉन्स को जोड़ भी रहा है, राइट? अब वो कैसे जोड़ रहे हैं उसको समझते हैं. ये जो गैप के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज साइनैप्स. ओके, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं दे आर कैरीड ओवर दिस गैप बाय अ मीन्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस. अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसका मैकेनिज्म को मैं समझा रहा हूँ. होता क्या है, ये आपका डेंड्राइट है, ये रेड लाइंस आपके क्या हैं? कैन यू सी दिस रेड लाइंस? दीज रेड लाइंस आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये आपका एक्सॉन है, राइट? ये वाला जो पोर्शन है आपका एक्सॉन है, उस एक्सॉन के अंदर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रहा है. जैसे ही वो आपके नर्व एंडिंग में पहुँच जाता है, आपको अगर ऊपर ध्यान होगा मैंने नर्व एंडिंग बताया था, जैसे ही वो नर्व एंडिंग में पहुंचता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इमीडिएटली अपने आप को कन्वर्ट करता है. एक्सॉन से जैसे ही वो बाहर निकलता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो इमीडिएटली अपने आप को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस. अब न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग इन बिटवीन साइनैप. तो ये जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं? साइनैप. तो साइनैप्स में आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं होता, कौन होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है. अब उस केमिकल सब्सटेंस को कौन रिसीव करता है? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट. तो वो सारा केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और इमीडिएटली वो किस में वापस कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वापस कन्वर्ट होके आगे वो चला जाता है. तो आप सोचिए कितना लाइटनिंग स्पीड से हो रहा होगा ये सब, है ना? तो मैकेनिज्म क्या है? एक एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को नर्व एंडिंग तक लेकर आता है, नर्व एंडिंग से वो निकल कर बाहर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और उस न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस को कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है? दूसरा डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का, और वो डेंड्राइट उसको रिसीव करके इमीडिएटली किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है. एंड दिस वे द मैसेज इज कैरीड इनसाइड द न्यूरॉन एंड ओवर थ्रू साइनैप्स. ठीक है, तो यहीं पे मैंने यहाँ पे यही चीज़ समझा रखा है कि द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर कैरीड ओवर दिस गैप बाय अ मीन्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस. सो फाइनली हम लोग साइनैप्स को डिफाइन करेंगे, अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स over which electrical impulses pass on going from one neuron to the
next neuron. Always keep in mind it's a microscopic gap between two neurons through which electrical impulses travel in the form of neurotransmitter substance. हमेशा ध्यान रखिएगा साइनैप्स में मैसेजेस किस फॉर्म में ट्रैवल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस. अगर आपको ये वाला डेफिनेशन नहीं हुआ तो मैं एक साइड में एक और डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ. माइक्रोस्कोपिक गैप, ओके, थ्रू विच electrical impulse travel between two neurons in the form of a chemical substance called neurotransmitter substance. Okay, so you can go for whichever definition you want. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि साइनैप्स में मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है. एक्सॉन नर्व एंडिंग में आके वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को ऑब्जर्व कौन करता है, डेंड्राइट, जो कि वापस उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. ओके, नाउ द फाइनल नोट टू दिस, साइनैप्स एक्ट्स लाइक अ वन वे वॉल्व. यू नो वॉल्व यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द बायो चैप्टर. सो क्यों भैया, क्यों वन वे वॉल्व, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है दे ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, from axon to dendrite, from axon to dendrite. It doesn't go like the other way around. And moreover, the electrical impulse release tiny amount of chemical substance into this gap known as neurotransmitter substance. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस पूरे सेक्शन में कि न्यूरॉन्स क्या फंक्शन करते हैं, कितने टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, एंड मोर ओवर न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होता है. और आपने देखा कि गैप भी दो चीज़ों को जोड़ सकता है, बट इज़ एन एक्सेप्शन ओनली इन ह्यूमन बींग्स. Otherwise, if you want to join two things, you can't join if you are having a gap, isn't it? तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा. And you have any doubt, any queries, please do ask in the live session, right? So we will be covering with the organs of nervous system in the next class. Till then, thank you so much, students. Please take care of yourself.